Hello, student. Welcome to my YouTube channel. I am Abhishek Kumar. Today we will discuss double entry system of accounting. So, double entry system is the foundation of modern accounting. Double entry bookkeeping is a accounting system where every transaction recorded in at least two account, debit in one account and credit in another account. It ensured that every financial transaction affect at least two accounts and maintain the accounting equation, which is assets should be equal to liability plus equity. इन हिंदी हम लोग बोलें तो डबल एंट्री सिस्टम जो है फाउंडेशन होता है मॉडर्न आजकल का जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसका फाउंडेशन कहलाता है। और डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जहाँ पे जो हमारा ट्रांजैक्शन पोस्टिंग होता है जर्नल पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग वो मिनिमम टू अकाउंट में होना चाहिए, कम से कम दो अकाउंट में होता है। जैसे कि एक डेबिट होता है अकाउंट और दूसरा क्रेडिट अकाउंट के रूप में होगा। और ये जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है कम से कम वो इंश्योर करता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो कम से कम दो अकाउंट में हो और वो मेंटेन करे अकाउंटिंग इक्वेशन को। और इसके द्वारा ये होता है कि एसेट्स जो है हमारा वो इक्वल होता है लायबिलिटी प्लस इक्विटी का। In double entry system, every transaction in the double entry system has opposite entry in two accounts, डेबिट एंड क्रेडिट का जो होता है। Let's understand the basic concept of double entry system with some simple example. If a business take out a 10,000 rupees loan, so here the cash amount, cash assets, cash is assets amount is debited. So assets, cash account is debited of 10,000 rupees, and the outstanding debt, it's a liability account is credited by 10,000 rupees. Next is the what is the key feature of double entry system. So first is dual aspect, second is balance, third is accuracy. Now what is dual aspect? Dual aspect means here is two accounts, one is debit and another is credit. Or debit is receiving aspect and जो credit is गिविंग एस्पेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट के दो हैं, एक है वन अकाउंट होता है, एक अकाउंट है डेबिटेड होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिटेड होता है। तो डेबिटेड अकाउंट में रिसीविंग एस्पेक्ट का आता है एंट्री एंड क्रेडिटेड अकाउंट में गिविंग एस्पेक्ट का क्रेडिट एंट्री आता है। दूसरा है बैलेंस। तो बैलेंस या डुअल एंट्री सिस्टम में जो है बैलेंस जो है शो होता है कि ऑल डेबिट इज इक्वल टू ऑल क्रेडिट। नाउ वी विल डिस्कस डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स। These terms are the core of dual entry system. This determined the increase and decrease in various account. Debit increase होता है, debit when increase means it indicates the increase in assets or expense। और डेबिट डिक्रीज कब होती है? डिक्रीज में आता है कि इट इंडिकेट डिक्रीज इन लायबिलिटी इक्विटी और रेवेन्यू। क्रेडिट क्रेडिट इंक्रीज शो करता है कब? तो इट इंडिकेट इंक्रीज इन लायबिलिटी इक्विटी और रेवेन्यू। और क्रेडिट डिक्रीज इंडिकेट डिक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस में। Now the term is account. So in dual entry system there is a two type of account. One is personal account, second is
impersonal account. In personal account, there is a three types: natural account, artificial account, or representative account. So, in personal account, natural account is related to person or human, मीन्स कि जो जिंदा लोग हैं कहा जाए, लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोनी अकाउंट, मेघा अकाउंट और सो ऑन. सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है जो कि लाइक बैंक अकाउंट, company account, society account, hospital account, etc. are artificial personal account. And third is representative personal account. So representative personal account are related to a collective account or a group or a person. For example, prepaid expense, outstanding salary account. आउटस्टैंडिंग सैलरी एक आदमी का नहीं होता है. प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं सिंगल एक्सपेंस का नहीं होता है, कलेक्शन का होता है. तो ये सब आ जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. अब चलते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंट का जो दूसरा पार्ट था, इम्पर्सनल अकाउंट. तो इम्पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट विच आर नॉट होल्ड इन द नेम ऑफ अ पर्सन और known as impersonal account, or any account other than personal account is called as impersonal account. अब इम्पर्सनल अकाउंट भी दो प्रकार के हैं. एक है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट में है ये रिलेटेड टू एसेट्स होता है. नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंस, लॉस, गेन, प्रॉफिट से रिलेटेड होता है. लाइक कि रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, तो ये सब नॉमिनल अकाउंट में हो गया. बट रियल अकाउंट एसेट्स से रिलेटेड होता है, दैट हैव अ फिजिकल अपीयरेंस. फॉर एग्जांपल लाइक मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट और सो ऑन. नाउ we will understand the rules of debit and credit, which is also known as golden rule of accounting. This will be applicable on all three type of account which we discussed. So in personal account, debit the receiver, credit the giver. मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में और डेबिट और क्रेडिट कैसे जानेंगे. तो डायरेक्ट याद रखना है कि इन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इन रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. एंड इन नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट. सो ये तीनों अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट को आप अच्छे से याद कर सकते हैं. डायरेक्टली आप 2-4 बार याद करेंगे, रटेंगे, रटाफिकेशन मार दो इसमें. इन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इन रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. इन नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट. नॉर्मल सा याद आ जाएगा. अब हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन में डेबिट में जाएगा और क्रेडिट में जाएगा. तो अगर ट्रांजेक्शन में है, मिस्टर मुकेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज. मीन्स कि मिस्टर मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से. इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं. एक है कैश अकाउंट जो कि आ रहा है बिजनेस में. तो ये अब हम लोग कैश अकाउंट जो है, कैश क्या है, कैश है रियल अकाउंट. और कैश जब रियल अकाउंट है तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है. मीन्स कम्स, व्हाट कम्स इन. हमने पढ़ा था गोल्डन रूल में कि इन रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन आर डेबिट. तो यहाँ पे कैश अकाउंट रियल अकाउंट है वो डेबिट में चला जाएगा. अब कैपिटल के रूप में आया है बिजनेस में, जो आया तो कैपिटल में. तो कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। जब पर्सनल अकाउंट में हो गया तो कैपिटल अकाउंट में, और ये हमारा गिवर है, दिया गया है। तो पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल में हम लोग जानेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर जो हमारा है कैपिटल के रूप में आया है वो हो जाएगा क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग अगर देखें तो दूसरा अगर देख लें कि परचेज गुड्स फ्रॉम सीता ₹50,000 ऑन क्रेडिट। इसमें भी टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट जो है परचेज अकाउंट है एक, दूसरा है सीता अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में परचेज क्या हो गया, परचेज हमारा नॉमिनल में होता है, एक्सपेंस होती है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, पैसे खर्च हुए हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट में हो गया। अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स याद करेंगे तो था ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो यहाँ पे एक्सपेंस है तो ये डेबिट में जाएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरा जो है हमारा सीता अकाउंट है, सीता से हमारा पैसा आया है, तो पर्सनल अकाउंट में देखेंगे डेबिट पर्सनल, सीता पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सीता यहाँ पे हमें पैसा दे रही है, गिवर है, तो ये क्रेडिट में जाएगा। थर्ड जो ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे वो देख लेते हैं, पेड रेंट ₹2,000। तो पेड रेंट में भी अब दो अकाउंट तो देखना ही है, तो टू अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें भी। एक है रेंट अकाउंट, एक है कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट जो हमारा है वो नॉमिनल अकाउंट में चला जाता है। अब नॉमिनल अकाउंट का जो हमारा गोल्डन रूल्स था, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। एंड कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट था, रियल अकाउंट में क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश यहाँ पे जा रहा है, रेंट पे कर रही है कंपनी, तो कैश जा रहा है मीन्स व्हाट गोज आउट मीन्स कि ये क्रेडिट में चला जाएगा। एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं, तो फोर्थ हमारा ट्रांजेक्शन आ जाएगा सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विवेक ₹50,000 ऑन क्रेडिट। Here also two accounts are involved, Vivek account and sales account. So Vivek is the personal account, Vivek क्या है कि विवेक गुड्स रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट क्या था, डेबिट द रिसीवर था, तो गिवर था क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवर जो है विवेक है, तो विवेक के अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। एंड सेल्स जो है, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पे सेल्स हुआ है मीन्स कि इनकम हुई है, तो ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट में, हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं कि परचेज ₹4 कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। सो यहाँ हेयर टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, कैश में परचेज हुई है। फर्नीचर इज रियल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, एंड इन रियल व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, टू थिंग्स याद रखना है। पर्सनल में भी, पर्सनल में क्या था, गिवर रिसीवर, रियल में कम्स इन गोज आउट, एंड नॉमिनल में ऑल एक्सपेंस लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे फर्नीचर जो हमारा है वो रियल अकाउंट है, और फर्नीचर बिजनेस में आ रही है तो व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट में जाएगा। और कैश अकाउंट जो है वो बिजनेस से दिए हैं परचेज करने के लिए, तो व्हाट गोज आउट है, तो ये क्रेडिट में आएगा। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं कि रिसीव्ड बियरर चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम विवेक। बियरर चेक is also a cash. So here two account involved, cash account or Vivek account. So cash is a real account what comes in and what goes out। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कैश आ रही है, रिसीव किए हैं चेक, चेक मीन्स कैश, बियरर चेक मीन्स कैश, इट्स इक्वल टू कैश। तो हमने कैश रिसीव किया मीन्स कि व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड विवेक
किससे किए हैं? विवेक से। तो विवेक यहाँ पे गिवर है, पर्सनल अकाउंट में गिवर जो है वो क्रेडिट में आता है, तो यहाँ पे विवेक अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। अब सेवेंथ ट्रांजेक्शन हम लोग देखें तो पेड टू सीता बाय चेक ऑफ SBI बैंक ₹40,000। अब यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक सीता अकाउंट, दूसरा SBI बैंक अकाउंट। अब है पेड टू सीता, मीन्स कि सीता को दिया गया है, मतलब सीता रिसीव की है, और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर जो है वो डेबिट में आता है। एंड SBI बैंक ये भी पर्सनल अकाउंट का ही है। और यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन है पेड टू सीता बाय चेक ऑफ SBI बैंक, तो SBI बैंक के द्वारा दिया जाएगा, तो SBI यहाँ पे गिवर है, मीन्स कि SBI अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा और सीता अकाउंट जो है वो डेबिट में आएगा। एंड एक और ट्रांजेक्शन हम लोग देख लें, यह लास्ट रहेगा। पेड सैलरी इन कैश ₹8,000। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारा कंपनी का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट में जाता है। एंड कैश रियल अकाउंट है, कैश भी बिजनेस से जा रही है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट में है, तो व्हाट गोज और जो है वो क्रेडिट में जाती है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो आज हम लोगों ने पढ़ा डुअल एंट्री सिस्टम, टाइप ऑफ अकाउंटिंग, टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, इसकी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने जाना वो था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, नो सॉरी, वो रियल अकाउंट में था व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड ऑल इनकम एंड गेन। एंड पर्सनल में था रिसीवर एंड गिवर। सो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।